Okay, so very good morning, everyone. I hope everybody is here, and we are going to start a very super duper and speedy writing practice for board resolutions. Okay, so first thing is board resolutions mainly आपको papers में पूछ लेता है, mostly company law के paper में पूछता है. Last time, as I told you, 20 marks का draft आया था. अब इसमें practice करने से पहले let us understand हमको ये करना क्या है. Okay, what we have to do exactly, why we are doing this. So the first thing is, while doing writing practice, you are not only doing a writing practice of particular draft or a board resolution, you are doing writing practice for all your 4 or 8 papers. Either you are of both the groups or single group. तो आप सबकी तैयारी एक साथ कर रहे हो, right? तो speed has to be maintained. Point number 1, the pen you are using, it has to be the same pen while in the exams. Same pen in the sense, ऐसा नहीं मैम इंक खत्म हो गई तो कैसे लेके जाएंगे, don't ask me that question, but definitely you can use the same brand. Okay, for example, you are using a cello pen, so you have to use the same pen. Ma'am, what is the reason? The reason is इससे आपका speed maintain रहेगा. Okay, so it will help you to maintain your speed. Understood? Understood? So you have to use the same pen. Second point is, don't panic while writing, because nervousness will kill you. I've already told you guys, man talk of killing time, and time quietly kills them, right? So don't be nervous and don't panic yourself. Exam में question आया है, just think you are in an examination. Prepare yourself for 3 hours. Okay, exam में question आया है, solve करना है या नहीं करना है हमारे ऊपर है. So what will you choose? Obviously उसको solve करना. Negative markings तो है नहीं, right? तो solve तो हमको by hook or crook करना ही है. तो why to fear? जब एग्जाम में आ गया तो पेपर छोड़ के भाग नहीं सकते हो, right? Crying and nervousness won't change the question, although you have to write. So why wasting time in getting panicking or nervous attacks? So don't do that. Be sure that you are writing in a very, very proper way and very relaxing manner. Okay? Clear. Third thing, what we are going to do today? Let us discuss the agenda for today. We are going to draft board resolution, but board resolution एक जरिया है. हम क्या कर रहे हैं? हम although writing practice पूरे subjects की कर रहे हैं, either you are appearing for single module or both the modules. This is very important, trust me. आप ही सोचो, अगर आपके 3 hours का पेपर है, okay, so you are having 3 hours of paper. अगर आप इस पेपर को 2.5 hours में खत्म कर पाओ और half an hour पेपर को आप रीचेक कर पाओ, so just imagine it will definitely increase 5 to 6 marks in every paper. मतलब aggregate से तो हम बचेंगे ही बचेंगे, but exemption का भी हमारा scope बढ़ सकता है. Okay, and last thing I would request, please don't assume कि हमको पास होना है. पास होना is a very underrated and mediocre statement. Okay, हमको पास नहीं होना है, हमको exemption लाना है. होता है ना, अगर AIR की सोचोगे तो एग्जामिशन मिलेगा, एग्जामिशन की सोचोगे तो पास हो जाओगे, और क्या पता AIR का सोचो और AIR की जैसी पढ़ाई की तो AIR भी मिल जाए. नथिंग इज अ रॉकेट साइंस. हम यूपीएससी के एग्जाम नहीं दे रहे कि आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आएगा. ओके, वी हैव गिवन अ बुक, वी आर sound enough, we are of a sound mind, we are not disqualified by giving the exams. We can understand, we can read, it's just how to manage the time and smartly study. तो ये सब चीजें ध्यान में रख के प्रैक्टिस करना है. एंड प्रैक्टिस आप सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशंस, मैं इसलिए बार बार ये रिपीट कर रही हूँ बिकॉज आप सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशंस और आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो. कंपनी लॉ का पेपर बहुत लेंथी आता है, JIGL का पेपर थोड़ा कंपनी लॉ से कंपैरेटिवली कम, बट फिर भी वो भी लेंथी आता है. ओके, टॉकिंग अबाउट एचबीसी अगर आप स्मार्टली सॉल्व करोगे ना, 2 घंटे में पेपर हो जाएगा. 1 घंटा रिवाइज कर सकते हो और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो. ट्रस्ट मी. टैक्स का पेपर लेंथी आता है क्योंकि आप लोग सोल्यूशंस जब करते हो तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि सोल्यूशंस करने में आप लोग बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो जिससे पेपर छूट जाता है. वो चीज टैक्स में मत करना. ओके, कंपनी लॉ में केस लॉ पढ़ने में बहुत टाइम लगाते हो. ओके, 2 बार 3 बार पढ़ने में. सो क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ना कि एक बार, मैक्सिमम बड़ा क्वेश्चन है तो 2 बार में हो जाए. ओके, कोई भी क्वेश्चन को 3 मिनट से ज्यादा हमको नहीं रीड करना है, बिकॉज पहले ऐसा होता था 15 मिनट्स पहले पेपर मिल जाता था, अब ऐसा नहीं होता है मोस्टली. ओके, हमको पहले 15 मिनट्स पहले पेपर मिल जाता था, हम पेपर पढ़ सकते थे, बट नाउ यू डोंट हैव द ऑप्शन, राइट? सो नाउ व्हाट इज टुडेज एजेंडा? आई होप यू आर क्लियर विद द बेसिक्स. आपको बेसिक क्लियर में आ रहा है कि हम यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं मिले हैं, हम यहाँ पे बहुत ही स्पेशल मोटिव से मिले हैं, बिकॉज लेक्चर्स 100% लोग अटेंड कर रहे हैं, पूरी क्लासेस 100% लोग कर रहे हैं, पढ़ाई 100% लोग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पास
10% लोग होते हैं, सिर्फ एग्जामिशन 6% लोग होते हैं, AIR 1 या 2% का आता है। तो वो जो 6, 10 और 2-3% है ना, वो एक्स्ट्रा क्या करते हैं जिसकी वजह से उनका एक्चुअली में एग्जामिशन या AIR आता है या वो पास हो जाते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर टुडे। क्लियर? आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि यार कंपनी लॉ में ड्राफ्ट आता है, बस वो क्लास में किसी टीचर ने पढ़ा दिया क्लास के साथ साथ कि ठीक है ये ड्राफ्ट आएगा, इसको ऐसे ऐसा ड्राफ्ट करना है, बट प्रैक्टिस की ही नहीं। CS है, हम प्रोफेशनल है, हम क्यों लिखकर पढ़ाई करेंगे? ट्रस्ट मी, ये जो पुरानी चीज है ना कि लिखकर पढ़ने से होता है, तो एक्चुअली में होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू राइटिंग प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ओके, यू हैव टू डू राइटिंग प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ट्रस्ट मी। और अभी भी हमारे पास टाइम है, इट्स नॉट कि टाइम नहीं है, बिकॉज आप ही सोचो, आधे बच्चे फेल होते हैं क्वेश्चन पेपर छूटने की वजह से। यस, तो अगर आपका क्वेश्चन पेपर ही नहीं छूटेगा, क्वेश्चन आंसर्स ही आप पूरे लिखोगे, तो हाउ वुड यू फेल इन द एग्जामिनेशन? Okay, so these all things we must do and properly do in the examination. Clear? Now understand one thing, what we are going to do today. First, I am going to give a question and उसका आंसर भी मैं यहीं पे बताऊंगी. Okay? Okay, and then I'll give you 5 minutes to learn. मेरे सामने ही अभी आप learn कर सकते हो. Okay, so I'll give you 5 minutes to learn. You have to learn the draft. जो ढांचा है, I hope वो आप learn करके आए हो. जो मोल्ड मैंने आपको दिया था बोर्ड रेजोल्यूशन का, I hope वो learn करके आए हो. वो आपको learn करना है, नहीं भी करके आए हो, डोंट वरी, आप मेरे सामने learn करोगे, मैं आपको learn करवा दूंगी. Clear? उसके बाद I'll give you 5 minutes. सामने वॉच रखना है, ठीक है? I'll also count. वॉच रखना है और आपको ये लिखना है ड्राफ्ट के बाजू में कि आपने कितने मिनट्स में उसको सॉल्व किया. ओके, यू हैव टू राइट द मिनट्स. इसके बाद हम फिर से सेकंड क्वेश्चन में आपको बताऊंगी, आंसर भी मैं ही बताऊंगी. वो आपको लर्न करना है मेरे सामने अभी 5 मिनट्स में, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन. ओके, सेकंड थिंग. थर्ड में आपको क्वेश्चन बताऊंगी बट आंसर नहीं बताऊंगी. आई जस्ट गिव यू द हिंट एंड देन यू हैव टू राइट. और तीनों को आपको कंपेयर करना है कि कितने मिनट्स में आप ड्राफ्ट्स कर पा रहे हो. ओके, जस्ट अज्यूम, एक होता है ना, यू नो, व्हेन यू रीड द नॉवेल, so you actually imagine, right? If you're reading a scene, you actually imagine, okay, this is happening, right? So in the same way, you have to imagine you are sitting in an ICSI hall, exam center, and you are writing your paper. Only then it will work. Have a positive mindset, and only then it will work. Okay, so let us start. So my first question is, draft a resolution for the change of registered office of a company within the city. Now first, whenever the resolution come, आपको उससे related clause याद करना है. तो जब हम registered office shift करते हैं एक city से दूसरी city में, तो हमको कुछ obligations होते हैं, पर हम within city ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको कोई central government को बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है, board of directors simple majority से कर सकते हैं. ओके, ये आपने पढ़ा होगा, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सेकंड थिंग वी हैव टू रिमेंबर इज, इसमें कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी प्रोसेस करेगा और INC 22 भरना पड़ेगा. ये दो चीजें हमको पता होनी चाहिए. नहीं पता, ई फॉर्म्स डोंट वरी, बस लिख देना कि कंपनी सेक्रेटरी विल फिल ई फॉर्म एज एन बाय हियर बाय ऑथोराइज्ड टू हिम और हर. ओके, तो ये चीज आप लिख देना. क्लियर अनामिका? इफ यू हैव एनी डाउट डियर, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द चैट बॉक्स. वी शुड यूज ब्लैक और ब्लू पेन. बेटा दोनों अलाउड है, बट बॉल पेन अलाउड है. बॉल पेन अलाउड है बिकॉज इंक पेन से क्या होता है कि यूजुअली यू नो पेपर्स बहुत काफी टाइम बाद चेक हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, पेपर्स कुरियर्ड होते हैं, सो इन दैट केस द इंक में गेट फेडेड, इंक फेड हो सकता है, राइट? सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू यूज प्रॉपर ब्लू एंड ब्लॉक. आई यूज जेल पेन मैम, डोंट यूज जेल पेन पीयूष. अगर आई शो यू द इंस्ट्रक्शन ऑफ ICSI, आई शो यू द इंस्ट्रक्शन ऑफ ICSI, ओके, then it will be clear. Okay, चलो अभी हम जहाँ पे हैं वहां से हिलते नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? एक बॉक्स बनाना है एंड वो बॉक्स में लिखना है टाइप ऑफ मीटिंग, ठीक है, एंड रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी. ओके, ऊपर क्या लिखोगे? बोर्ड रेजोल्यूशन. क्लियर? अगर पहले बॉक्स बनाना है पहले बॉक्स बना सकते हो, लिखने के बाद बॉक्स बनाना है लिखने के बाद बना सकते हो. पहले बॉक्स बनाने का फायदा ये होता है दैट दिस थिंग कम्स इन अ प्रॉपर लाइन. लाइक अगर आप बाद में बनाओगे तो ऐसे हो सकते हैं आपकी वर्डिंग्स, बट आप पहले बॉक्स बना दोगे तो इट कम्स इन द प्रॉपर लाइन. ओके, सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू राइट इज सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स held at the registered of the office of the company at address
ऑन डैश डेट एंड एट टाइम। आपको देख के लिखना है, आप देख कर लिख सकते हो। उसके बाद आपका मेन यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, उसमें आप क्या लिखोगे, रिजॉल्व दैट द सॉरी द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। बहुत ही सिंपल कि पहले कहाँ था और अब कहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो द रजिस्टर्ड ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी शिफ्टेड फ्रॉम XYZ एड्रेस। एड्रेस प्रॉपर लिखना, कुछ याद नहीं आएगा ना, घर का एड्रेस लिख देना, ठीक है। टू, पिन कोड भी लिखना है, टू, फिर जहां शिफ्ट हो रहा है विद इन सिटी है, याद रखना। बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे पुणे, यहाँ लिख देंगे मुंबई, पूरा रेजोल्यूशन कट, स्टेप मार्किंग भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। विद इन सिटी हो रहा है, फोकस करना, ध्यान रखना। तो विद इन सिटी में लिख दो, वहां पे कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है, एंड विद इफेक्ट फ्रॉम डेट लिख दो। दैट्स इट, ओके। नाउ सेकंड थिंग, resolve further that company secretary is B and is hereby authorized to do all such act deeds and things expedient in this matter from time to time। अगर कुछ नहीं पता तो, अगर पता है तो company secretary is B and is hereby authorized to file e-form INC 22 with register of companies Pune। अगर आपको नहीं पता कौन से jurisdiction में आता है तो सिर्फ with registrar of companies लिख देना, and उसके बाद लिखना and to do all such act deeds and things expedient in this matter from time to time। That's it। और नीचे लिख देना CTC फॉर द कंपनीज नेम, डायरेक्टर, एड्रेस, सिटी और स्टेट। और यहाँ पे आपको डायरेक्टर एड्रेस की जगह लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना कि डायरेक्टर मिस्टर एक्स एड्रेस, ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है मिस्टर एक्स, फिर डायरेक्ट एड्रेस, सिटी सपोज पुणे एंड पिन कोड। और छोटी छोटी चीजें ध्यान देना, बच्चे क्या करते हैं, ऊपर लिखेंगे मुंबई विद इन सिटी और नीचे लिख देंगे पुणे, वो चीज मत करना। सो सिटी हैज टू बी सेम बिकॉज हम विद इन सिटी कर रहे हैं, ठीक है। अगर अभी आपको लर्न नहीं हुआ है, आई एम गिविंग यू 2 minutes टू लर्न, इसको लर्न कर लो। अगर लर्न नहीं हुआ है, देख के भी फर्स्ट ड्राफ्ट लिख सकते हो, ओके। चलो, सो यू हैव अप्रोक्सीमेटली 11:43 हो रहा है, 11:45 यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग, 11:50 आई विल स्टॉप and I will move to the next question। Your time starts now। आपको इस टाइम पे लर्न भी करना है और लिखना भी है। Come on and please open your videos guys, I want to see everybody's writing or not। Please on your videos, you can keep it in any uncomfortable position, that's okay। It's not your perfect angle, or that's okay if I'm not able to see you properly, it's okay। I just want to see your face or book anyways, I just want you to keep your videos open। CTC certified true copy। So your time starts now, come on। You can learn or you can also write, okay। The choice is your, you have to spend how much time in learning and how much time in writing। बोल बोल कर करो, बोल बोल कर लिखो, that will help you। It's 11:45, you have 5 minutes।
Anamika, Piyush, Riya, Muskan, Saurabh. Why the videos are not on? Sandesh, Raghav. It's not necessary कि सब कुछ याद रहे. जितना याद है उतना लिखो. Three minutes to go, guys. अभी तक आपका resolve that का first paragraph हो जाना चाहिए. Resolve that का first paragraph should be done. You must be writing the last part now. 1 minute to go. कुछ भूल भी गए हो, कुछ नहीं आ रहा है, it's okay. Just keep on writing. Keep on writing. You are in exams. You have only 3 hours to write the paper. Okay, so the time is over. Finish your draft fast, guys. Everybody finish your draft fast.
डन. ओके, नाउ एवरीबडी स्टॉप. जितना हुआ ठीक है, क्लास के बाद उसको कंप्लीट करना. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, what you have to check in your drafts. First is just see here and see, have you written it properly? This part, have you written the first part properly? Next thing is resolve that. Now you have to see, have you written this part properly? Registered office. Okay, now it is within city. तो पिन कोड सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है. इट्स ओके, बिकॉज एड्रेस टू एड्रेस पिन कोड चेंज होता है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, सिटी हैज टू बी सेम, एरिया हैज टू बी डिफरेंट, एंड ऑलवेज मेक श्योर. सी, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इसको ध्यान भी नहीं दोगे तो चलेगा, बट मेक श्योर द लोकेलिटीज आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर. ओके, नाउ रिजॉल्व फर्दर दैट. So you have to write company secretary B and is hereby authorized to file e-form INC 22 with ROC. अगर पुणे नहीं भी लिखा है, जो भी सिटी आप jurisdiction है, बिकॉज कुछ स्टेट्स में लाइक मुंबई में देर आर 2 ROCs, राइट? तमिलनाडु में देर आर 2 ROCs, तो इट्स ओके अगर आपने वो नहीं लिखा तो. क्लियर? उसके बाद मेक श्योर दैट यू हैव रिटन इन अ प्रॉपर बॉक्स. ऊपर आपने पासिंग अथॉरिटी एंड नेचर ऑफ रेजोल्यूशन लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रेजोल्यूशन विद सिंपल मेजोरिटी. ओके, क्लियर? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, जल्दी से टाइम नोट कर लो, आपने कितने मिनट में लिखा है. अपने ड्राफ्ट के बाजू में टाइम नोट कर लो. Okay, so let us move to the next question. The first thing you must understand, guys, for the resolution to be correct is, जब भी आप बोर्ड रेजोल्यूशन लिखोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, शिफ्टिंग विद इन सिटी. तो हमको सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है. बोर्ड मीटिंग्स में वो पास कर सकते हैं, बोर्ड के पास पावर्स है कि विद इन सिटी वो डिसीजन ले सकते हैं, एंड दे हैव टू फाइल INC 22. अगर यही होता फ्रॉम वन सिटी टू अनदर तो हमको स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ता, राइट? 75% वोटिंग लेनी पड़ती. तो ऊपर आप लिखते स्पेशल रेजोल्यूशन. Clear? Now can we move to the next question? I hope आप लोगों ने सबने उसमें अपना टाइमिंग लिख लिया है. ठीक है? Okay, now see next question. Draft a resolution for appointment of secretary in whole time practice for signing annual return. Now what you have to do is you have to appoint a secretary whole time for signing annual return. Now you will say, ma'am, ये कैसा है कि सिर्फ secretary को signing of annual return के लिए appoint करे? See, usually what happens is company में employment जो employed CS होता है वो already होता है, but they are not allowed to sign. Sometimes they are not allowed to sign, do secretarial audit. तो अलग से consultancy के लिए हम appoint करते हैं PCS को, firms को. वैसे ही यहाँ पे they are saying that whole time practice के लिए we are just appointing in a company for signing of annual return. कुछ भी नहीं लिखना है. क्या लिखोगे यहाँ पे कि क्या नाम है उसका? For example, Mr. X has been appointed as the secretary in whole time practice. B and is hereby appointed at a remuneration of, उसको कितना पैसा देंगे, to sign the annual return of the company, made up to date of ensuring AGM of the company. That's it. और नीचे ये भी लिख सकते हो. अब यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करो तो मत लिखना कि कंपनी सेक्रेटरी इज expedient to do all those matters things. इतना लिख देना, Mr. X, the director of the company, is expedient to do all such matters and things, expedient in this matter from time to time. बात समझ में आई क्या? क्या लिखना है? वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं लिखना है. राघव, इट्स ओके. अभी वाला अगर आपने लेट भी ज्वाइन किया, इट्स ओके. ये सर्टिफाइड टू कॉपी मोनिका ब्लॉक लेटर्स में लिखना है. ओके, चलो
So what you have to do is, I have already told you the question. लिखना क्या है, सबको समझ में आ गया? एक बार जल्दी से रीड कर लो, जल्दी से रीड कर लो आंसर. पासिंग अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रेजोल्यूशन विद सिंपल मेजोरिटी. जल्दी से रीड कर लो. बोल बोल के लीड करो, बोल बोल कर लिखो. इट विल, ट्रस्ट मी, हेल्प यू टू ओपन योर सेंसेस बिकॉज यू आर ऑलरेडी ब्लॉक्ड ऑनलाइन. सो जस्ट रिलैक्स, ओपन, से, स्पीक. मजा आएगा पढ़ने में. Done? Okay, so I hope the reading is done. Now the time is 12:08. Okay? आपको फिर से मैं ड्राफ्ट लर्न करने का टाइम दे रही हूँ. जो पिछली गलती हुई है, व्हाट योर मोटिव, अभी यहाँ पे समझो प्लीज. जो पिछले ड्राफ्ट्स में गलती हुई है वो इस ड्राफ्ट्स में नहीं होना चाहिए. गिविंग यू 1 मिनट, जल्दी से पुराना ड्राफ्ट देख लो और देख लो क्या क्या गलती हुई है. कंपेयर इट. जल्दी से देख लो और देख लो क्या क्या गलती हुई है. डन. चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ड्राफ्टिंग. ओके. एड्रेस एंड टाइम में मैम क्या आएगा? पीयूष, एड्रेस एंड टाइम में यू हैव टू राइट एनी एड्रेस एंड टाइम. एनी एड्रेस एंड टाइम, इट्स ओके. यू हैव टू अज्यूम द फैक्ट्स. हर बार जब क्वेश्चन आता है उसमें लिखा होता है अज्यूम द फैक्ट्स. सो यू कैन अज्यूम द फैक्ट्स एंड यू कैन राइट एनीथिंग. मेक श्योर कि आप नीचे जो एड्रेस और पिन कोड लिख रहे हो वही ऊपर लिखो. ठीक है? क्लियर? सो दैट शुड बी यूनिफॉर्म. ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे मुंबई का एड्रेस लिख रहे हो और नीचे लिख रहे हो डायरेक्टर पुणे. सो जस्ट मेक श्योर वो सेम होना चाहिए. क्लियर? चलो, सो इट्स फाइनली 2:09. आपका 12:15 तक, 12:09 हो रहा है. आई एम अज्यूमिंग 12:10 और आपका 12:15 तक ड्राफ्ट हो जाना चाहिए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. कम ऑन, राइट फास्ट. मैटर ऑफ 5 मार्क्स, जस्ट इन 5 मिनट्स. कोई आंसर लिखोगे बहुत लंबा लिखना पड़ता है. इसको प्रॉपर लिखना, बॉक्स बनाने की कोशिश करना. इस बार विद इन टाइम पीरियड बॉक्स बनाने की भी कोशिश करना. अच्छा, पहले बॉक्स बना के भी लिख सकते हो, उससे तुमको पता चलेगा कि कितना अच्छा दिखता है बॉक्स में और अलाइनमेंट आता है. यू कैन डू बोथ वेज, दैट्स ओके. कम ऑन, बोल बोल के लिखो. नहीं याद आ रहा तो जल्दी याद आएगा. कम ऑन, फास्ट. ऑब्वियसली एग्जाम में यू कैन नॉट स्पीक, ज्यादा बोलकर नहीं लिख सकते, पर मन में बोल के लिख सकते हो. यू कैन डू लिपसिंग, तो इससे इट विल हेल्प यू टू राइट इट इन फास्ट मैनर. सोच के लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा. वन मिनट, डन. सीटीसी मस्ट बी ओवर. फर्स्ट वाला 3 लाइन हो जाना चाहिए अभी तक.
Write fast. Only motive here is don't panic. Your new draft should be better than the last draft. Piyush, in the second one, you can write further resolve that Mr. X, the director of the company, is authorized to do all such act, deeds, things expedient in this matter from time to time. अगर नहीं इतना समझ में आता एग्जाम में तो ये भी लिख सकते हो further resolve that a certified true copy of the resolution is given to anyone concerned or interested in this matter. You can write even this. One minute left. If you are writing, further resolve that and last wala CTC, then you are in a good speed. If you are making a box or you are writing, you are in a good speed. If you are in a first resolve that, you are not in a good speed. You have to buck up. You have to improve. Time is over. Finish your drafts fast. Finish your drafts fast. And note down the time. Note down the time. Message me the times in the chat box. First draft and second. First/timing, second/timing. Pursuant wala. First wala. Okay, Piyush, I'll tell you. First, Anamika, first 10 minutes, second 7 minutes. Very good. Anushka, first 6 minutes, second 5 minutes. Very good. So you are improving, okay? First 5 minutes, second 5.1. Okay, still you are not in any loss. Harsh, 15 wala, first, second 8 minutes. Wow, great. Ajinkya, 7 minutes. Okay. You are a little bit 2 minutes late. You have to do in 5 minutes. Monica, first 5, second 6. Kumkum, first 6, second 4. Very good. First 6:15, second 5:10. Yash. Okay. Sharad, first 5:30. Sandesh, 8 minutes. Puneet, first 7 minutes. Okay. So you all are doing great. किसी का भी 10 minutes से ऊपर नहीं जा रहा है. That is great. 6 minutes, 5 minutes. Mudrika. Okay. Very good.
Ashutosh 9 minutes 7 minutes. Aniket second 4 minutes. Okay. Avantika 8 minutes. Second 5:30. Very good. Sanchit Arora 7 minutes. Pavan 7:7. Okay, no problem. Shivam 1 minute. Early. Okay, good. Sanchit second 8 minutes. 7:5 Puneet. Karishma 7:7 minutes. Okay. So everybody has done really well. Raghav first 6, second 5. Okay. Now see. अब मैं आपको रीजन बताती हूँ. बहुत सारे लोगों का सेकंड वाला जो ड्राफ्ट था वो मे बी थोड़ा सा टाइम लगा. यू नो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज गुड दैट आपने और थोड़ा सा उसमें परफेक्शन लाया, आपने और उसमें थोड़ी सी डिटेल्स लिखी, आपने और अच्छे से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की, राइट? इसीलिए वो 1-2 मिनट ऊपर हो सकता है. बट अंडरस्टैंड नाउ, आपको समझ में आया कि अगर एग्जाम में जस्ट इमेजिन अगर बेटा 2 ड्राफ्ट भी आ जाते हैं ना 10 मार्क्स के, 2 ड्राफ्ट, लोगों का 1 मार्क्स से एग्रीगेट छूटता है, सो मैं तो 2 ड्राफ्ट ही बोल रही हूँ. तो अगर आपके 2 ड्राफ्ट आ जाते हैं 10 मार्क्स के, एक ड्राफ्ट 6 या 5 मार्क्स का आता ही है. ओके, सो अगर 10 मार्क्स के आ जाते हैं और इसको अगर आप 10 मिनट्स में कवर कर देते हो, 10 मिनट्स में बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 3-3 मिनट में हो जाना चाहिए. जस्ट इमेजिन अगर आपकी पॉकेट में इसमें से 8 मार्क्स भी आते हैं, थ्योरी आंसर तुम लिखोगे. ऑलवेज ऑप्ट फॉर बोर्ड रेजोल्यूशंस, थ्योरी और एनी ड्राफ्ट, बिकॉज थ्योरी आप लिखोगे तो इससे डबल टाइम लगता है, डबल टाइम लगता है. सो ट्रस्ट मी, इफ यू प्रैक्टिस दिस कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कल किया आज किया एंड यू आर प्रो एट दैट. नो, यू हैव टू डेली लुक ओवर दैट. और लिखने की प्रैक्टिस से क्या होगा, आपकी नॉर्मल एग्जाम में भी स्पीड बढ़ेगी. एंड स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से आपके माइंड में रहेगा कि आई हैव टू मेंटेन दिस स्पीड टिल द एंड. Okay, so this is very important that your speed must be maintained till the end. आपकी स्पीड एंड तक मेंटेन होनी चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज नो यूज ऑफ डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस. इज बॉक्स नेसेसरी? अनामिका डेफिनेटली नॉट. अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है मत बनाओ बॉक्स. इट्स जस्ट बॉक्स बनाने से वो अलाइन होता है, अदरवाइज नॉट नेसेसरी. ओके, अगर आपकी स्पीड बिल्कुल अच्छी नहीं है, सो डोंट मेक द बॉक्स. दैट्स ओके. क्लियर? नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आई एम गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चन, I am going to give you the hint of the answer और वो आपको खुद लिखना है. Okay, just give me a minute. ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सेम लास्ट एग्जाम में आया था, ये हम डिस्कस करेंगे कल. आज हम बेसिक राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं. सेम ये मैंने लास्ट एग्जाम में करवाया था, एनुअल रिपोर्ट इन एब्रिज्ड फॉर्म. अगर कोई अभी फिर से दे रहा है तो उनको याद होगा. तो ये आया था बोर्ड रेजोल्यूशंस में. नाउ ओके, so my next question is, अप्रूवल ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट. ये भी आ चुका है. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ अंडरस्टैंड, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको क्या लिखना है. मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? रिजॉल्व दैट एक्चुअली टुडे इज माय फर्स्ट क्लास. रिया श्योर डियर, आई वुड प्रेफर यू, बिकॉज मैं आपको इतनी सी देर में इतना सारा चीज नहीं बोल पाऊंगी. तो आप श्योरली रिकॉर्डिंग देखो फर्स्ट क्लास का, विच इज अवेलेबल इन यूट्यूब चैनल. Still you have any doubt, you can anytime ping me. I'll 24/7 reply to you. Now understand that thing, this thing. The question is draft a board resolution for board's report. Okay. Now board reports क्या होगा? Board report आप शेयर होल्डर को प्रेजेंट करते हो मीटिंग में, राइट? टू शो कि ऑडिटर्स रिपोर्ट कैसी आई है, ऑडिट कैसा हुआ है, कंपनी में कोई क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्क मार्क्स है क्या. तो अब इसके लिए व्हाट यू डू, फर्स्ट यू टेक द बोर्ड मीटिंग टू अप्रूव द बोर्ड रेजोल्यूशन, टू अप्रूव द बोर्ड रिपोर्ट. सॉरी, सो आपको लिखना क्या है? Resolve that the board report to the shareholders of the company for the year ended so and so, prepared in accordance with the provision of section नहीं पता, prepared in accordance with the provision of Companies Act together with annexure, and also containing suitable explanation and fullest information on reservation, qualification and adverse remarks contained in auditor reports as submitted in the meeting be and is hereby approved, and the same is signed by Mr. X, chairman of the company, and Mr. Z, managing director, and Mr. X, director. 2 डायरेक्टर और एक चेयरमैन साइन करेगा, तो उसको भी वो मेंशन कर दिया है.
दैट्स इट. जल्दी से पढ़ लो और ड्राफ्ट करना. मैं आपको टाइमिंग बताऊंगी. जल्दी से एक बार रीड कर लो. पासिंग अथॉरिटी, बोर्ड मीटिंग, नेचर ऑफ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन इन सिंपल मेजोरिटी. डन. Okay, so I hope you are done. Now the time is 12:13. So I'll assume 12:15. I'm giving you 2 minutes more. 12:20 तक आपका ड्राफ्ट हो जाना चाहिए. 12:20 p.m. Your time starts now. Come on. Now you are, be honest with yourself. Beat up your own speed and be honest. No, don't see and write. Okay. I'll just stop sharing the screen this time. Be honest with yourselves, write properly. I have stopped sharing the screen and you have to write. See and write by your own selves, okay? Two minutes over. सौरभ, आई थिंक अगर आपका ऑलरेडी बेटा रीचेक हो चुका है फर्स्ट टाइम, सो आई थिंक डबल डालने में देयर इज नो यूज. दैट इज व्हाट आई अज्यूम. अब कभी एकदम ही ऐसा लक हो जाता है, ऐसा होता है कि वो रिवैल्यूएशन में आ जाता है. बट अगर आप ऑलरेडी डाल चुके हो, सो आई डोंट थिंक उससे ज्यादा कुछ फ्लक्चुएशंस आएगा. अगर आप डाल सकते हो तो यू कैन डेफिनेटली. 3 minutes ओवर. बीच में कोई भी बात करे, मैं कुछ भी बोलूं, आपका ध्यान यहाँ नहीं होना चाहिए. You never know I am distracting you. Come on, buck up your speed. Two minutes left. Come on, you must be writing next wala further resolve that now.
फिनिश फर्स्ट वाला, रिजॉल्व दैट फास्ट. Come on, you have to solve the next paper as next question as well. Fast. Assume you are in an exam and you have to solve the next question as well. Write fast. You know one trick, always in mind keep, जब भी आप कोई भी आंसर लिख रहे हो कोई भी सब्जेक्ट में, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, हर्ष वेरी गुड, हर्ष इज डन. नाउ जब भी आप कोई लिखते हो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में आंसर, दिमाग में ये रखना मुझे इसमें मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, मुझे इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, मैं कितना अच्छा आंसर लिख सकता हूँ. डेफिनेटली यू विल राइट बेस्ट आंसर, ट्रस्ट मी. मुग्धा, सना, शरद डन, वेरी गुड. Okay, so your time is up, guys. 1 minute, fast. जल्दी फिनिश करो अपने ड्राफ्ट्स को. Done. Very good. मुद्रिका, आशुतोष, अवंतिका, पुनीत, संदेश. कितना अच्छा लगता है डन लिख के, ड्राफ्ट लिखने के बाद. जस्ट इमेजिन अगर आप ये पूरा पेपर अच्छे से लिखोगे, so how nobody can stop you from getting good marks, guys. So understand one thing now. If you compare all your 3 drafts today, okay, once you compare all your 3 drafts today, you will get to know कि आपका जो फर्स्ट ड्राफ्ट था आप उसको देखो, और अब तो आपको लगेगा मैम एक और क्वेश्चन दे दो हम ऐसे ही लिख देंगे. yes or no? आपको लगेगा मैम एक क्वेश्चन और दे दो, we are going to write like this. Trust me, this is writing practice. So आप अगर उसको लिखते जाओ, और बार बार मैं आपको बोल रही हूँ गाइस, राइटिंग प्रैक्टिस इज नॉट कि आप सिर्फ उसको वो चीज लिखो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पूरे पेपर्स में इसको फॉलो करना है. इधर JIGL, इधर कंपनी लॉ, इधर SBEC, इधर एनी SLCM, EBCL, एनी थ्योरी पेपर अगर आप इस स्पीड से लिखोगे, और ऐसा नहीं कि लिखकर खत्म करना है, दिमाग में होना चाहिए कि हमको कितने अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं इसको लिखकर. यू नो हाउ बेस्ट आई कैन गेट द मार्क्स व्हाइल राइटिंग दिस. ट्रस्ट मी गाइज, इन एवरी पेपर यू विल गेट मोर 5. आई एम नॉट सेइंग कि 100 में से ज्यादा मिल जाएंगे, बट आई एम डेफिनेटली सेइंग जितने मार्क्स मिल सकते थे राइटिंग प्रैक्टिस अटेम्प्ट करने के पहले, उससे डेफिनेटली 4 से 5 ज्यादा मिलेंगे. एग्जामिनेशन का स्कोप बहुत बढ़ जाएगा एंड AIR का भी बढ़ेगा. एंड स्टॉप थिंकिंग इन माई माइंड दैट I want to pass in examination. Pass is very very underrated, mediocre thing. Pass होने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं. Okay, so you have to assume that you will get exemptions or you will get AIR. तभी आप पास होगे, ट्रस्ट मी. अगर उस हिसाब से आप पढ़ाई करोगे तो. मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बता रही हूँ. मैम हैंडराइटिंग बिगड़ रही है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो अवंतिका, हो जाएगी अच्छी. बिकॉज क्या होगा, आप पहले के पेपर्स में अच्छा लिखते हो आंसर, एंड में जाते जाते राइटिंग वैसे भी बिगड़ती है, राइट? तो अगर आप स्पीड में ही अच्छा लिखने की प्रैक्टिस करोगे अभी से, और मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ कि रोज तुम लोग मेरे साथ 2 घंटा बैठो यार, आज फर्स्ट डे था इसलिए मे बी टुक 1 आवर. अगर हम रोज आधी घंटा भी प्रैक्टिस करेंगे ना, मार्च में अगर हम लोग हाफ एन आवर भी प्रैक्टिस करेंगे, so definitely you are going to get through that. Definitely. कल हम लोग minutes देखेंगे. Tomorrow we are going to do minutes and daily I am going to give you a question, या मैं आपको स्कैनर भेज दूंगी जिसमें क्वेश्चंस है रेजोल्यूशंस के काफी सारे, तो उसको देखकर रोज आपको प्रैक्टिस करना है. ठीक है, उसको देखकर रोज आपको एटलीस्ट, यार सोने से पहले इंस्टाग्राम फेसबुक तुम लोग आधी घंटे तक स्क्रॉल करते हो, उससे अच्छा 5 मिनट बस एक ड्राफ्ट कर लो. ट्रस्ट मी, बहुत फायदा होगा. बस टाइम रखो, इट्स जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ अ गेम. स्टॉप वॉच रखो अपने सामने, स्टार्ट करो, शुरू करो. रिजॉल्व दैट समझ नहीं आ रहा? सी पीयूष, रिजॉल्व दैट में आपको कुछ नहीं लिखना है, जो भी क्वेश्चन दिया है ना उससे रिलेटेड लिखना है. कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है, मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया है कंपनी सेक्रेटरी, उसकी फीस क्या होगी और चेयरमैन ने अप्रूव किया, दैट्स इट. यही सब चीजें लिखना होता है. रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है,
एक प्लेस से हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया, उसका एड्रेस, दैट्स इट. मेन जो फर्स्ट रिजॉल्व दैट होता है ना, वो डिसीजन होता है जो आप ले रहे हो, जो क्वेश्चन में दिया होता है. बाकी तो पूरा ही ढांचा है, बाकी तो पूरा आपने लर्न किया हुआ है. ओके क्लियर. सर्टिफाइड ट्रू कॉपी शिवम. ओके सो आई होप आपको मजा आया प्रैक्टिस करने में. थोड़ा सा लिखो गाइज, ऑनलाइन यू आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड. सिर्फ पीडीएफ्स मत पढ़ो. आई वुड रियली सजेस्ट यू गाइज दैट प्लीज प्रिंट आउट योर नोट्स. ओके डजंट गेट मच. थोड़े दिन नेटफ्लिक्स और अमेजोन का सब्सक्रिप्शन मत लो, डोमिनोज मत खाओ. सेव योर मनी, टेक आउट द प्रिंट आउट. पीडीएफ से मत पढ़ो, बुक से पढ़ो, मजा आएगा पढ़ने में. Make points of every answer. You are the lucky one that you have joined in mid-March because you still have the time to do all these things. So आप अभी भी उस चीजों को कर सकते हो. ठीक है. ओके डिसीजन थोड़ा समझ नहीं आता मैम. पीयूष सी, मैंने आपको ऑलरेडी सिंपलेस्ट बोर्ड रेजोल्यूशन दिया जो शायद ही आपको कहीं मिलेगा. ये मैंने आपको खुद एक जो मोल्ड ड्राफ्ट करके दिया हुआ है, वो मैंने आपको बहुत ही सिंपल दिया है. तो थोड़ा सा हमको डिसीजन में दिमाग लगा के रिजॉल्व दैट फर्स्ट वाला अच्छा लिखना पड़ेगा. ओके क्लियर. सो टुमारो आई एम गोइंग टू सेंड यू अ क्वेश्चन. Clear. And tomorrow the timing I'll just message you because tomorrow is Holi, so probably if there will be class or not I'll just inform you guys. Okay, and make sure do the board resolution ka draft at least for 5 minutes from today daily at night. This is a prescription from my side. Okay, so if you do, you'll definitely get good marks in the examinations. Clear. Please compare after the class your resolutions, your handwriting, as a checker, that if I am checking this board resolution, how many marks I'll get. As a checker, just look to it. Go and see the past exam questions. I'll show you in the next session. Go and see the past exam question. अगर believe नहीं हो रहा है तो खोल कर देखो 10 से 20 मार्क्स के ड्राफ्ट से, और अब आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ. Yes, I'll send the questions of board resolution right away. Clear? Chalo. Okay guys, good to see you all writing and hard working. Do keep it up. Tomorrow we are meeting. I'll just inform you in the group. Okay, bye guys. Bye bye.